Good morning, children. As I send you the picture of some topics which are deleted as per the DK Goyal book. So, as per this new edition, या new revised pattern of the DK Goyal, they said from illustration 18 to 26, they are not the part of your syllabus as per the revised syllabus of CBSE. So, I'll start with illustration number 27 today. Eric, Aditi, and Tarini were partners in a firm sharing profit and losses in 532. This is the balance sheet. So, firstly, copy all the assets in the debit side. We have first debtors, they are of rupee 22,000. Then we have provisions in the credit side. By provisions, they are of rupee 2,000. Then we have to stock. The value of stock is 12,000. Next we have plant and machinery, it is of 30,000. Next is land and building, 45. Investment, 35. Advertisement suspense, it is a loss, so it will be distributed in partners account. Next we have current account balance. This is the current account balance. From the liabilities, firstly we have employees provident fund, it is of 8,000. Then we have creditors, the value of creditors are rupee 10,000. Then we have investment fluctuation fund, it is of rupee 4,000. Next we have the current and capital account balances. Now, as per the adjustments, the first adjustment is plant and machinery whose cost 20,000 was taken over by Eric at 16,000. One of the partner, Eric, he purchased the value of plant and machinery. So write here the name of the person, Eric's capital account. He is the partner. उसने परचेज की है प्लांट एंड मशीनरी. He purchased it at rupee 16,000. And the remaining machinery were realized rupee 9,000. बाकी जो मशीनरी बिकी वो बैंक से आपको रियलाइज हुई 9,000 रुपीज़ में. सो प्लांट एंड मशीनरी रेस्ट वैल्यू 9,000 में रियलाइज हुई. लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज एट 42. So from land and building you will get rupee 42,000. Investment was taken over by Aditi. Aditi एक partner थी again, उसने investment purchase की. Right here her name, Aditi's capital account. She purchased the investment at rupee 28,000. Next is sundry debtors includes a bad debts for rupee 1,000. सो 22,000 के डेटर्स थे जिसमें से 1,000 के बैड हो गए. इट मीन्स 21,000 के बचे. एंड द अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द गुड डेटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. 21,000 के डेटर्स में से भी 10% डिस्काउंट, मतलब 2100 का डिस्काउंट लेस करके डेटर से हमें रिलाइज हुआ रेस्ट अमाउंट 18,900. नेक्स्ट वी हैव अ क्रेडिटर्स फॉर रुपी 2,000 वाज अनट्रैकेबल. 2,000 के क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट नहीं करनी है. एंड अदर क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड एट 10% डिस्काउंट. सो क्रेडिटर्स थे आपके टोटल 10,000 के, जिसमें से 2,000 के पे नहीं करने. इट मीन्स रेस्ट आर 8,000 और उनको भी 10% के डिस्काउंट पर पे किया 800 का 10%. सो इट इज़ 7,200 जो हमने उनको पेमेंट करनी है टू बैंक अकाउंट. क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी 7,200. 10,000 की क्रेडिटर्स में से 2 की पेमेंट नहीं करनी, बाकी बचेंगे 8,000 को 10% डिस्काउंट पर पे करोगे तो 7,200 की पेमेंट होगी. एरिक वॉज अलाउड टू रिटेन द होल ऑफ द स्टॉक एज अ रेम्यूनरेशन फॉर द डिसोल्यूशन. तो यहाँ पर उसके एक्सपेंस के बदले में हमने उसको एसेट दी है, एक्सचेंज किया है. सो देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन. नाउ चेक आउट ऑल द लायबिलिटीज आर पेड और नॉट. प्रोविजंस हम पे नहीं करते बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ द रिटेन प्रॉफिट. देन वी हैव प्रोविडेंट फंड. हमने प्रोविडेंट फंड की पेमेंट अभी तक नहीं की. सो पे द फुल अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एज रुपी 8,000. नेक्स्ट हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी है. सो द टोटल लायबिलिटी पेड इज ऑफ रुपी 15,200. देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस. इन दिस वी हैव रियलाइजेशन लॉस. Loss on realization, it is rupee 21,300. This is to be distributed among the 3 partners as per their profit sharing ratio. It is this one. ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. नेक्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. There are
capital as well as the current account balances are mentioned of the partners. तो आपको क्या करना है, in the capital account brought down the balance of their current balance, fixed capital balances. The capitals are 60, 40 and 30. So brought down it as 60, 40 and 30. जो करंट अकाउंट के बैलेंसेज हैं वो भी अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं. सो लायबिलिटीज़ वाले बाय में, सो बाय करंट अकाउंट, these are the current account balances 8,000 and 10,000, and for the third partner it is in the assets to current account. The balance is of rupee 5,000. The amount of realization loss in the debit side 10,1650, 6390, 4260. We have advertisement suspense also. This is to be distributed in the debit side. Advertisement suspense. So after the distribution it is 1,500, 900, 600. Check. पार्टनर से कोई एसेट या लायबिलिटी परचेज़ की है. ही परचेज द एसेट एरिक, प्लांट एंड मशीनरी, और एक आदिति ने परचेज़ की थी. तो इनके डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट. एरिक ने परचेज़ की 16 की प्लांट एंड मशीनरी एंड अदिति परचेज 28,000 की इन्वेस्टमेंट. नाउ फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर एंड मेक द फाइनल पेमेंट. राइट हेयर टू बैंक अकाउंट 39,850, 14,710, 2140. This is about the capital account, and I hope you will be able to prepare the bank account on the basis of these two accounts. Look at the next one, illustration number 28. I am doing the realization account. So these are the three partner, Ram, Shyam and Mohan, and their ratio is 2:1. This is the balance sheet. Firstly, transfer all the assets in the debit side. First we have debtors 15,000, then stock 50,000. Next we have plant 75, patents 20, X company shares, they are of rupee 5,000. Then we have Y company shares, they are of rupee, the value of Y company share, they are of rupee 18,000. Then we have goodwill, 2 goodwill 15,600. Next we have advertisement suspense, leave it. From the liabilities, first we have creditors 40,000. Next we have bills payable 2,600. Then we have provisions for depreciation. अभी तक हमने बैड डेब्ट्स का प्रोविज़न ही ट्रांसफ़र किया है. एनी काइंड ऑफ प्रोविज़न इफ़ इट इज़ मेंशन दैट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड. राम्स लोन, राम इज़ अ पार्टनर, सो उसके लिए हम लोन अकाउंट बनाएंगे. कैपिटल इसमें नहीं आती. लायबिलिटी एडजस्टमेंट्स, द फर्स्ट इज़ राम टेक्स ओवर डेटर एट 10,000, स्टॉक एट 20% लेस एंड प्लांट एट 30,000 रुपीज़. राम ने 3 एसेट्स परचेज़ की. सो यू मे राइट बाय राम्स कैपिटल अकाउंट. बट ही परचेज, एक तो लिए उसने डेटर्स 10,000 के, स्टॉक लिया उसने 20% लेस में. स्टॉक था 50,000 का 20%, 10,000 लेस, इट मीन्स उसने परचेज़ किया 40,000 में. और उसने लिया एक प्लांट 30,000 रुपीज़ का. सो ये 3 चीज़ें राम ने परचेज़ की. नेक्स्ट, वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट्स whose value was rupee 8,000 at a valuation of 4,800. कोई क्रेडिटर था हमारा, उसने 8,000 के बदले में 4,800 की पेटेंट्स हमारी एसेट परचेज़ की. तो हमने पहले भी किया है कि अगर लायबिलिटीज़ के एक्सचेंज में अगर आप कोई भी एसेट पे करते हो तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती. एंड द बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1,200. नाउ फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स. लुक एट हियर, द क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर्स दे आर ऑफ रुपी 40,000. 40 में से 8,000 के क्रेडिटर 4,800 में गए. तो मेरे पास थे 40,000 के क्रेडिटर जिसमें से 8,000 के कम हो गए. नाउ द अमाउंट इज़ 32,000. 32,000 के क्रेडिटर्स को अब हमने जो रेस्ट अमाउंट है उसको 1,200 से लेस करके पेमेंट करनी है. सो अल्टीमेटली वी
we will be able to pay only 30,800 to the balance of the creditors. In the debit side, you may write to bank, the payment to the creditor is of rupees 30,800. The next, there was an unrecorded asset of rupees 15,000 not mentioned in the balance sheet, which was taken over by Ram at rupees 10,000 in the part payment of his loan. 15,000 की एक इन्वेस्टमेंट थी जिसको राम ने अपनी पार्ट पेमेंट ऑफ लोन में परचेज कर लिया. इस तरह का हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया था कि जितने का लोन है राम का लोन है यहाँ पर 40,000 रुपीज़ का. अब 40,000 के लोन के बदले में उसने एक हिस्सा लिया है 40,000 के रिटर्न में. उसने 10,000 की एक अनरिकॉर्डेड एसेट ले ली. सो अभी 30,000 की राम की हमें पेमेंट और करनी है, वो राम के अकाउंट में पे होगी. सो राम को जो लोन है वो आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में एज अदर लाइबिलिटीज़, बिकॉज हमने उसको लोन के एक्सचेंज में 10,000 रुपीज़ की एसेट की पेमेंट की है. लाइक वी हैव कि टोटल अमाउंट ऑफ लोन था राम का 40,000, बट उसने सिर्फ 10,000 की एसेट परचेज़ की अपनी कुछ हिस्से की पेमेंट के रिटर्न में. तो जितना अमाउंट ऑफ एसेट हम उसको पे कर रहे हैं उतना अमाउंट ऑफ लायबिलिटी राम की हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है. सो राम लोन इज़ रुपी 10,000. अब एसेट को सेल करके फिर उसकी पेमेंट उसको करोगे तो अल्टीमेट इफेक्ट 0 होगा. सो नो एंट्री फॉर दिस. नेक्स्ट, शेयर्स इन एक्स कंपनी वर एग्रीड टू टेक ओवर बाय श्याम एट रुपी 30 पर शेयर. एक्स कंपनी के शेयर्स को श्याम ने 30 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग परचेज़ कर लिया. नाउ वॉच हियर, 100 शेयर्स इन एक्स कंपनी के 100 शेयर्स से एक शेयर को उसने 30 रुपीज़ में ख़रीदा. तो 30 इंटू 100 को टोटल शेयर्स कितने हो गए उसके 3,000 रुपीज़ के. और इसको परचेज़ किया है श्याम, वन ऑफ द पार्टनर. सो यू मे राइट बाय श्याम्स कैपिटल अकाउंट. ही परचेज्ड शेयर्स कितने के 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपी 30 पर शेयर. सो उसने परचेज़ किए 3,000 रुपीज़ के. नेक्स्ट, शेयर्स इन वाई कंपनी वर वैल्यूड एट रुपी 12,000. जो वाई कंपनी के शेयर्स थे उसकी वैल्यू अब हुई है 12,000. ऑल पार्टनर्स डिवाइड दी शेयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इस 12,000 के रुपीज़ को तीनों पार्टनर्स ने परचेज़ किया है. तो यू मे राइट बाय राम्स कैपिटल अकाउंट, by Shyam's capital account and by Mohan's capital account. What they purchase? They all purchase by company shares. Total 12,000 rupees is divided into their ratio. It is 2 to 1. So 2:1 में उन्होंने shares purchase किए. It is 4,800, 4,800 and 2,400. नेक्स्ट वी हैव बैलेंस ऑफ द पेटेंट्स रिलाइज 70% ऑफ देयर बुक वैल्यू. बाकी जो बचे हुए पेटेंट्स थे उनकी हमें बुक वैल्यू से 70% रिलाइज होगा. नाउ प्लीज़ चेक द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स. दे आर ऑफ रुपी 20,000. एक क्रेडिटर्स था, वन ऑफ द क्रेडिटर्स, सम ऑफ द पेटेंट्स हुज बुक वैल्यू वॉज 8,000. एक क्रेडिटर था जिसने 8,000 के पेटेंट्स खरीदे थे आपके. 8,000 के पेटेंट्स उसने 4,800 में परचेज़ किए थे. चिल्ड्रन, देयर वॉज अ मिस्टेक इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स. लुक एट दिस कि वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट्स. एक क्रेडिटर ने पेटेंट्स थे वो 8,000 के 4,800 में परचेज़ किए थे. सो आई थॉट कि क्रेडिटर्स 8,000 के रिटर्न में उसने 4,800 की पेमेंट रिसीव की, बट दिस इज़ लाइक कि टोटल आपके पेटेंट्स थे 20,000 रुपीज़ के, जिसमें से 8,000 के क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिए. तो रेस्ट अमाउंट ऑफ पेटेंट्स आर रुपी 12,000. अब एज़ पर द लास्ट एडजस्टमेंट हमें इसका 70% रिलाइज़ होगा. तो इसका 70% अगर रिलाइज़ होगा इट इज़ 8,400. सो यू मे राइट हेयर बाय बैंक you will be able to get from patents rupee 8,400. Now this about creditors is wrong. Now check out the value of creditors. How much is the value of creditors? The creditors are of rupee total 40,000. 40,000 के क्रेडिटर को हमने सिर्फ 4,800 के पेटेंट्स दिए.
सो द रेस्ट वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स जो हमें उनको पे करनी है, इट इज़ 35,200. अब इनको हमने 1200 के डिस्काउंट पर पे किया. सो अल्टीमेट अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स आर ऑफ रुपी 34,000. सो यू मे राइट हेयर एज रुपी 34,000 और 30,800. आई थॉट कि उसने क्रेडिटर्स 8,000 के कम किए. दिस इज़ नॉट क्रेडिटर्स. ही परचेज द पेटेंट जिसकी बुक वैल्यू 8,000 थी 4,800 में. तो क्रेडिटर्स आपके 4,800 से ही कम होंगे. नाउ एज पर द एडजस्टमेंट्स ऑल आर ओवर हेयर. चेक आउट द लाइबिलिटीज, दे आर पेड और नॉट. क्रेडिटर्स की पेमेंट हो चुकी है. देन वी हैव बिल्स पेबल. देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन फॉर द मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल्स. सो टू बैंक अकाउंट पे द बिल्स ऑफ रुपी 2,600. देन वी हैव प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन. ये आपका पे नहीं होता. यू नो कोई भी प्रोविज़न हम पे नहीं करते बिकॉज वो हमारे ही प्रॉफिट्स में से रिटेन करके हुआ रखा हुआ एक हिस्सा है. नेक्स्ट वी हैव आर्स राम लोन जिसके बदले में हम उसको एसेट कर चुके हैं पे. फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. वी हैव लॉस हेयर. द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन लॉस इज 64,200. दिस इज टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Then we have Ram's loan account. Please watch it. Firstly brought down the balance of Ram as रुपी 40,000. अब 40,000 में से 10,000 की तो हमने राम को एसेट या इन्वेस्टमेंट दे दी थी 10,000 की. सो जो बाकी 30,000 की पेमेंट है वो उसकी टू बैंक के थ्रू 30,000 की पेमेंट हो जाएगी. नेक्स्ट वी हैव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. I hope you will be able to prepare the capital and bank account on the basis of this realization account because you need to transfer if they purchase any assets or liabilities paid उनकी डेबिट और क्रेडिट साइड में. लाइक हेयर राम ने ये तीन चीज़ें ये परचेज़ की थी 40 and 80 इट इज़, तो उसकी डेबिट में जाएगा. श्याम ने ये परचेज़ किए थे शेयर एंड अगेन दे परचेज द शेयर्स ऑफ आई कंपनी. सो दे आर टू बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. That's all about this illustration. Now you will be able to, I think, solve up to illustration number 30. After that, we will be able to discuss all the questions because I think up to 30 अगर आप लोग कर लेंगे realization account आप लोगों को बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा. If you are able to prepare the realization account, then there is no problem in the journal entry because कुछ लास्ट के जो अप्रॉक्सी 10 से 12 क्वेश्चन है they all are based on the journal entries. So prepare the realization account and keep in your mind कि what are the things which are to be recorded in the debit or what are the things which are to be recorded in the credit side as per the adjustments. Up to that, take care and do the practice. Thank you.